Hello everyone, welcome to GitHub. In this video we will discuss about fluid mechanics. Okay, this is the second video lecture on the fluid mechanics. In our previous video we have completely discussed about the basics of the fluid mechanics and the assumptions which is used in the study of the fluid mechanics. Okay, in this video we will discuss about the basics of the fluid mechanics and the definitions and some formulas which is required for the further study of the fluid mechanics. Okay, first one, in the last of this video I will discuss about the Newtonian fluids and the non-Newtonian fluid and their behaviors. Okay, so if you don't have subscribed my channel, please subscribe my channel for more latest updates. Okay, so let's get started. The first topic here is the classification of fluid mechanics. Okay, as you know that fluid mechanics is divided into three categories. Okay, first one is fluid statics, second one is fluid kinematics, and third one is the fluid dynamics. In fluid statics we discuss about the fluid is at rest, okay, and the external forces causing on it, okay, and the forces acting on it. First one. Second one is fluid kinematics. In fluid kinematics we discuss about the fluid in motion without considering the forces and the motion causing it. Okay. Third word is fluid dynamics. In fluid dynamics we discuss about the fluid in motion, but here we considering the factors and the external force which is causing the motion of that fluid. Okay, then let's start this video. Okay, first our topic is fluid, classification of fluid. Okay, classification of fluid. Okay, fluid can be classified in three forms. Okay, first one is fluid statics. Okay, first one is fluid statics. Second one is fluid kinematics. Third one is fluid dynamics. Okay, in fluid statics we study about the fluid at rest. And external forces on it. Okay, first one. Second one is fluid kinematics. Here kinematics means motion. Fluid is in motion. Okay, fluid in motion without considering the forces causing it. Okay, in the fluid kinematics the main our aim is to study about the motion of that fluids. Whatever the forces causing on it, we neglect all these things and only will consider and focus on the fluid in motion, only motion behavior. Okay, but in fluid dynamics, okay, here we discuss about fluid is at motion. Okay, but here the main difference between the fluid kinematics and the fluid dynamics is the forces causing on it. Okay, considering forces causing it. Okay, I hope
this topic is clear for you. Okay, we have discussed the fluid classification of the fluid and the main difference between the fluid kinematics and the fluid dynamics. Okay, let's move toward our next topic, which is basics of fluid mechanics. Okay, our next topic is properties of fluid. Okay, in this our first topic is the mass density. Okay, or a specific mass. First one is mass density. Mass density or a specific mass. Okay, it is represented by rho. So here the formula of rho is mass density equal to mass per unit volume. Okay, or mass into volume. Okay, here the mass density, which is how many mass of a fluid occupying 1 meter cube of volume, that is known as the density or a specific mass of that fluid. Okay, okay, let's see the dimension. Okay, what is the dimension here? Meter, mass kg, and for volume is meter cube. So the unit of mass density is kg per meter cube. Okay, and let's see the mass density of some fluids, for some standard fluids. For rho for water is equal to 1000. Okay, 1000 kg per meter cube. Second one is for rho for kerosene. तो केरोसिन का यहाँ पे जो रो की वैल्यू हो जाती है वो हो जाता है 810 kg per meter cube. And for mercury, rho of mercury is 13600 kg per meter cube. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे तीन मास डेंसिटी है, इनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा जो मास डेंसिटी होता है यहाँ पे किसका हो रहा है? मरकरी का. ठीक है, आउट ऑफ वाटर, केरोसिन और ये. ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मास डेंसिटी. ओके, व्हिच फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग दिस वन. ओके, ओके, द फैक्टर्स अफेक्टिंग रो. ओके, जस्ट सी दिस फॉर्मूला. ओके, रो इक्वल टू mass upon volume. Okay, here mass is a constant. Okay, mass doesn't change if we increase or decrease the temperature and pressure, whatever. Okay, so here mass is fixed. Our the first factor is temperature. Okay, first one here we are considering temperature. Okay, just see here. If temperature is increased, suppose that here if we have a fluid, okay, if we are increasing the temperature, okay, temperature increases, that means mass is remains same, but the volume, okay, the volume will expand. Here the volume is increases, the mass density, which is inversely proportional here, rho is inversely proportional here, V increases, rho decreases. Okay, clear? So rho decreases as temperature increases. Okay, first one. Second one, but here one exception case is there. Okay, for water. Okay, here important. Okay, for water. Okay, for water, if temperature is increases up to 0 degree Celsius to 4 degree Celsius.
okay, 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, the rho will increase, okay, and the mass density will increase. But after 4 degree Celsius, rho decreases with temperature increases. If we increase the temperature of that of 4 degree Celsius, okay, then the mass density will decrease. But when we increase the temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, then reverse case is here, okay. So it is exception cases, okay. You should remember it, okay. Now the next topic is a pressure, okay. Second one is pressure, okay. As you know that if pressure is increased, suppose we increases the pressure, here mass is constant. If pressure will increase, then the volume of that fluid will decrease, okay. Fluid आपका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, fluid volume is decreased, then what this value will increase, because these are the inversely proportional, okay. Density is inversely proportional to 1 by V. Suppose V value is decreasing, then rho value will increase. So pressure increases, the rho will increases, okay. First one, yeah. Second one, third one is effect of location. Third one, here we are writing here. Third one, effect on location, okay. On location, the mass density remains same, okay, because on location mass is a fixed quantity and volume does not depends on the location, that's why rho will constant, okay. So this is the mass density. Our next topic is a specific weight, okay. Our second property is a specific weight and weight density, which is represented by the gamma or rho into G, okay. Okay, look at here, gamma, okay. Here gamma is weight per unit volume, okay. A specific weight is weight per unit volume, okay. Check here the unit, weight of unit what is Newton, by here volume meter cube. So this is our the SI unit of a specific weight, okay. So next see the factors affecting gamma, okay. Affecting gamma. First one here is acceleration due to gravity. First one, acceleration to, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेट है, वेट को हम क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू, वेट को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सपोज इफ G increases, then gamma will also increase, okay, because gamma is here proportional to G. So if G increases, then the value of gamma will also increase, okay. First one, or we can say that gamma equal to how much, rho into G, है ना. Rho is the fixed for any fluid and G increases, gamma increases, okay. From both sides you can check this thing. हमारे यहाँ जो नेक्स्ट आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो है मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय S और G, है ना. तो जो S और G का जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो हो जाता है S और G, विच इज डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड,
Okay, this is the formula for a specific gravity or relative density. Okay, try to understand here one thing. If a specific gravity, we have to find the specific gravity. Okay, then what we will do, density of any fluid, the fluid which is given, and the density of the standard fluid. For liquid, a standard fluid is water. Standard fluid is water at 4 degree Celsius, which is considered as the standard fluid. Okay, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से, ताकि हमको ये जो चीजें हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सकती है. ठीक है, अगर हमको किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी फ्लूइड का, पर्टिकुलर फ्लूइड का दिया गया है, ठीक है, S इक्वल टू सपोज 0.8 हमें दिया गया है. ओके, अब हमको क्या करना है कि डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड वी हैव टू फाइंड. हमको उस फ्लूइड का डेंसिटी को फाइंड करना जो हमें नहीं पता है. ठीक है, हमको केवल यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है. तो चलिए इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं. हमारे यहाँ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लूइड, जिसका हमको निकालना है यहाँ पे डेंसिटी, डिवाइडेड बाय रो स्टैंडर्ड फ्लूइड. ओके, तो यहां पे अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रो ऑफ फ्लूइड वो क्या हो जाएगा, S इंटू रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना. मैंने आपको कुछ देर पहले आपको बताया था रो ऑफ वाटर कितना होता है, 1000. सो S हियर इज 0.8, रो स्टैंडर्ड हाउ मच, यानी वाटर का जो डेंसिटी होगा, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस वो कितना होता है, 1000. इसकी अगर हमको फ्लूइड का यहाँ पे, तो इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया, 800 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी की जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आपस में इस तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं. ओके, तो चलिए हम कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड्स लेते हैं. ठीक है, और उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को ले लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट केस वाटर से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. हमको इसका सबका S का वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के लिए S का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. हमारा रो ऑफ वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000, एंड स्टैंडर्ड फ्लूइड भी हम क्या लेते हैं, जब लिक्विड के केस में है उसका स्टैंडर्ड फ्लूइड मेरा वाटर ही होता है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1. यानी आपको ये चीज याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1. फर्स्ट वन. सेकेंड वन हम यहाँ पे बात करते हैं, हम सेकेंड यहाँ पे केरोसिन की बात करते हैं. केरोसिन का अगर हमको यहाँ पे निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे हम रो ऑफ किसका लिखेंगे, केरोसिन, यानी जिस भी फ्लूइड का हमको यहाँ पे फाइंड करना है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको हम ऊपर लिखते हैं और नीचे हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. केरोसिन का कितना होता है, हमारा डेंसिटी 810 होता है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना होता है वाटर का, 1000. तो मैंने यहाँ 1000 से भागा दे दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.81. ठीक है, इसको आपको याद रखना है. थर्ड वन इज हमारा सबसे ज्यादा जो यूज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो होता है मेरा मर्क्यूरी का. ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए मर्क्यूरी का भी देख लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रो ऑफ Hg, मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और रो ऑफ यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड. रो ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, 13600. ओके, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड 1000. Then the specific gravity value of mercury is 13.6. You have to remember this value. Okay? अगर किसी क्वेश्चन में तो मोस्टली आपको दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो आपको इतनी वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी. ठीक है, आप अगर इसको याद रखोगे तो आपको ये सब निकालने के झंझट से आप बच सकते हो. ठीक है, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में. हमारे यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम. ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है,
ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जिसको रो से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/रो, ठीक है। रो की यहाँ पे यूनिट कितना था, केजी पर मीटर क्यूब, तो यहाँ से चला जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का हम यूज कहाँ पे करते हैं, जनरली हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूज करते हैं जो हमारे गैसेस हो गए, ठीक है, फ्लूइड में गैसेस, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फ्लूइड का जो गैस होता है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके स्टडी के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत कम ही यूज होता है हमारा, ओके। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेरा प्रेशर, ओके, ठीक है, कि कितने टाइप का हमारा प्रेशर होता है और हम प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्थ के जो सरफेस होते हैं उस सरफेस पे हमारा क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस पे जो हमारा प्रेशर लग रहा है, क्या वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द अर्थ सरफेस लग रहा है, नहीं। अब इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो पूरा यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि हर जगह पे क्या कर रहा है, एलिवेशन उसका एल्टीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यानी हम मान के चलिए, सपोज दैट अगर ये मेरा अर्थ है, अगर हम एक छोटा से किसी रीजन को अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे देखना चाहेंगे, ठीक है, तो सपोज आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से, उसका जो कुछ टोपोग्राफिकल बिहेवियर होगा। सपोज यहाँ से अगर मेरा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर मेरा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ इस एटमॉस्फेयर से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कुछ अलग है, यहाँ से कुछ अलग है। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है बोथ आर द सेम, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने टाइप का हमारा यहाँ पे प्रेशर होता है ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस को हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रेफरेंस और दूसरे को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस। यूनिवर्सल रेफरेंस वैसा रेफरेंस होता है जो फिक्स होता है एक पर्टिकुलर आपका मीन सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रेशर, और उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। जो उसका वैल्यू होता है वो क्या होता है, मेरा हर जगह पे सेम होता है, वो चेंज नहीं करता है मेरा अल्टीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। बट एक हमारा यहाँ पे एक प्रेशर होता है, वो होता है मेरा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है मेरा नॉन यूनिवर्सल प्रेशर। ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये वैल्यू अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। और ये क्या करते हैं, हमारे पास सपोज यहाँ पे दो टाइप का हमारे पास रेफरेंसेस है, ठीक है। इन रेफरेंसेस के थ्रू से हम क्या करेंगे, किसी भी हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उसका जो हमारा प्रेशर होगा उसको हम कैसे मेजर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो एक लाइन ये मेरा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर एक वैसा प्रेशर होता है, ठीक है, जिस प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ठीक है, किसी भी गैस का और किसी भी हमारा जो लिक्विड का, वो एकदम कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, यानी रुक जाता है। तो उस स्टेज पे जो मेरा प्रेशर होता है उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और हम बोलते हैं उसको वैक्यूम प्रेशर। बट यहाँ पे एक मेरा जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू हम 1 atm ये आपको मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो प्रेशर का, इसको मैं नेक्स्ट जो हमारे कुछ वीडियोज आएंगे, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स, उसमें मैं ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ मेरा बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये सब सारी चीजों को डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, सपोज उस सिस्टम का अगर प्रेशर सपोज इतना उसका प्रेशर है, यहाँ पे P1 प्रेशर है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि इस प्रेशर को हम किसके रेफरेंस में मेजर करें। हम इस प्रेशर को इसके भी रेफरेंस में मेजर कर सकते हैं, इसके रेफरेंस में भी हम मेजर इसको कर सकते हैं। सपोज अगर हम इस P1 प्रेशर को अगर हम इसके रेफरेंस से अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम का अगर हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो इस प्रेशर को हम बोल देते हैं गेज प्रेशर, ठीक है, याद रखिए।
ओके। बट सेकेंड थिंग, अगर हम इस सेम P1 प्रेशर को अगर हम एब्सोल्यूट जीरो और वैक्यूम प्रेशर के इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम इसको मेजर करते हैं, अगर हम मेरा प्रेशर कुछ यहां से इस तरीका से हो जाता है, इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे से, तो इस प्रेशर को हम बोल देंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं PG से और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हमारा आप एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जरूरी नहीं है कि जो मेरा किसी भी सिस्टम का प्रेशर है वो प्रेशर मेरा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही ज्यादा होगा, ये वैल्यू कम भी हो सकता है। ठीक है, सपोज अगर कोई दूसरा कोई सिस्टम है, अगर उसका जो प्रेशर है वो हमारा यहाँ पे गेज प्रेशर के या आपका ये जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके नीचे लाई कर रहा है ना, यहाँ पे सपोज लाई किया, इसका मतलब मेरा ये P2 हो गया। ठीक है, ये P2 हो गया। तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, यहां से भी मेजर कर सकते हैं, यहां से भी मेजर कर सकते हैं। जब हम इसको यहां से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P गेज प्रेशर हो जाएगा। बट जब हम इसको इस लाइन के रेफरेंस से अगर हम इसको मेजर करेंगे इस प्रेशर को, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे P एब्सोल्यूट। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, P एब्सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, P एब्सोल्यूट को हम लिख सकते हैं P यहाँ पे ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, ये होल प्रेशर को हम इसको प्लस इसको जोड़ देंगे तो मेरा ये होल एब्सोल्यूट आ जाएगा, यानी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस P गेज प्रेशर। इसका आप मतलब समझिए, अगर प्रेशर यहाँ पे हम प्लस साइन तब लेंगे जब मेरा जो भी गेज प्रेशर होगा, यानी किसी भी सिस्टम का प्रेशर वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर लाई करेगा तब। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे इतना लेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम माइनस साइन लेंगे तब जब लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेरा प्रेशर है किसी भी सिस्टम का अगर वो कम होता है तो हम यहाँ पे एक चीज करेंगे। ठीक है, आप एक चीज यहाँ से समझ सकते हैं, अगर इफ एनी सिस्टम विच इज कंप्लीटली टच विद द एटमॉस्फेयर, अगर कोई भी एक मेरा सिस्टम है, यानी सपोज मैं रिवर की बात कर रहा हूँ, रिवर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिवर का जो सरफेस है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेज प्रेशर की जो वैल्यू होता है आप हमको बता सकते हैं, यहाँ पे गेज प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा। सो गेज प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। वो देखिए यहाँ पे सिस्टम था वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ना यहाँ पे आपको मतलब कि कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी किसी भी सरफेस पे कितना लगता है ड्यू टू फ्री एटमॉस्फेयर 180 m। तो ये जो प्रेशर है वो यहाँ पे चला आएगा, यानी यहाँ पे P गेज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा P एब्सोल्यूट इक्वल टू P ATM। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के टाइम पे आपको ये चीज याद रख लेना है। ठीक है, कि अगर मेरा ओपन कोई भी मेरा सरफेस है उस पे गेज प्रेशर की वैल्यू 0 होती है और जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा उस सिस्टम का वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ओके, आई होप यहाँ पे आपको जो प्रेशर है, ठीक है, वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कि देखिए जो कोई भी फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें बल्क मॉड्यूलस हमारा डायरेक्टली रिलेटेड होता है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कारण। ठीक है, तो देखिए जो किसी भी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी मेरा जो वॉल्यूम है वो घटेगा या बढ़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर और प्रेशर। ओके, तो देखिए हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। बट जब हम यहाँ पे जो मेरा वेरिएशन होगा किसी भी फ्लूइड का प्रेशर के कंपैरेटिवली, तो यहाँ से हमको दो चीजें मिलेगी। पहला मिलेगा बल्क मॉड्यूलस, सेकेंड मिलेगा यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है, आपने सोम में पढ़ा होगा कि बल्क मॉड्यूलस होता क्या है, वो होता है चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, विच इज माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय, ओके, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल द प्रेशर, all the forces which are acting compressive in nature. Okay, second one is compressibility beta. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, compressibility का और bulk modulus का यहाँ पे हम दो रिलेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, देखिए डेंसिटी को हम क्या लिख सकते थे,
डेंसिटी मास इनटू वॉल्यूम, ये तो हम इसको लिख सकते थे, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हम आगे फर्दर लिख सकते हैं रो भी इक्वल टू एम। मास क्या है, कांस्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में। अगर हम फ्लूइड के लेते हैं तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम पार्शियली इसको P एंड V के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं आप, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसको V के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो रो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये dV हो जाएगा, प्लस अगर हम इसको क्या करते हैं रो के टाइम पे अगर इसको कर दे V इंटू डी, रो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। तो हम यहाँ से इतना इसको कर देते हैं, तो हम यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा माइनस dP अपॉन V इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी रो बाय रो, ठीक है, पहला रिलेशन ये लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी रो बाय रो लिख सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को इसके बराबर, इस वैल्यू को हम इसके बराबर है, इसको हम इस जगह पे उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमारे यहाँ पे जो के का वैल्यू हो जाएगा, तो के का वैल्यू हमारा यहाँ पे होता है माइनस डीपी बाय आपका डी रो बाय रो, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था 2 साल पहले, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज को याद रख लेना। ये तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे के का वैल्यू, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम लिख सकते हैं होता है मेरा 1 अपॉन के, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के। तो आप यहाँ से इस चीज को चेंज आप कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको यहाँ से कॉम्प्रेसिबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, उसमें हम न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे विथ सम गेट एंड फॉर सम ESC प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम ऑल्सो। सो बी कंटिन्यू विद दिस चैनल। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू, बाय।